में classes. So let's start with it. So good afternoon, and today we will continue our next lecture that is about adaptive immune response. So is a kind of after that actually why we are going to talk about this lecture, because after learning this lecture we want to talk about the immunodeficiency diseases. Like we will talk about the HIV and we will talk about the other diseases which involve the immune deficiency. So before to understand those diseases, we have to know slightly background of those how our immune systems actually works. So if we look for that, we know that the innate immunity, what we have should recall before proceeding. And if you remember, we have two systems for our in our body for our immunity. So one is called innate immunity, and other we called it as a what we called हमारी adaptive immunity. So in terms of adaptive immunity जो है what we are going to talk about today. So इसके अंदर जो है innate immunity form of first and second line of the defense against the pathogens. If we talk about the first line of defense, that's what we have. We have a skin, we have a mucous membrane, cilia, stomach acid, and so on. All these actually work as a first line of defense. And if, as you can see here, so these organs are working as a first line of defense. So actually, what happened? Sometimes happened that these even instead of these first line of defense, still the pathogens can enter into our body and they attack on our body. So then what we have to do in that case, this is very important, how we can cope with those pathogens which can pass the first line of defense. So in that case, and then second line of defense, when the pathogen passes the first line of defense, so we have then other defense mechanism, what we call it, that is called macrophages, monocytes, neutrophils, eosinophils, and basophils, and so on. So that's we have another kind of the system here. So innate immunity form the first and second line of defense. And the first line of defense we mentioned here, and if we talk about like pathogens comes here, and they also protected by this one. If they are not still here, then they are protected by the second defense, and maybe the second defense kill them. So what happening when the first and second line of defense fail? So that's what I want to mention. If this first barrier they could not stop our enemies, so then how we can cope with those things? So we have the another system that is called third line of defense, and that third line of defense actually is our adaptive immune system, which involve our hero of this system. This is known as the T cells, and we know that already. Why we call them the T cells? क्योंकि बेसिकली जो है ये कहाँ पे बनते हैं, ये थाइमस के अंदर बनते हैं. So because of that, they are known as the T cells. And then we also known as like birds के नेम से, क्योंकि ये derived है, तो इनको हम पर्सा सेल या B cells भी कहते हैं, या B lymphocyte भी होते हैं. और then antigen presenting cells जो हमारी थर्ड लाइन को डिफेंस को क्रिएट करते हैं. Like and what we are going to learn, and that is called adaptive immunity, जिसको हम adaptive immunity के नाम से जानते हैं. And that is also known as the acquired immunity. In certain cases होता क्या है कि अगर ये हमारे सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो of course then we suffer with the diseases like HIV और other जो immune deficiency diseases होती हैं, then we got suffered with those diseases. तो इसके आगे हम, क्योंकि अगला हमारा जो है immune deficiency diseases के बारे में उनकी classification और उनकी further detail को पढ़ने वाले हैं. So I just want to take that lecture कि at least we should once revise again our basic immunology कि हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम कैसे काम कर रहे होते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल हमारे पास 3 डिफेंस लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड इवन थर्ड लाइन. फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जो उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, जो नेचुरली हमारे प्रोटेक्टर होते हैं, और लेकिन हमारे पास जो थर्ड लाइन है लाइक टी सेल, बी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जिसको हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और ये इज नोन एज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इज नेम्ड बिकॉज इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ थ्रू द कांटेक्ट विद द पैथोजेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. कि ये उनसे होती है कि जिनकी बेस के ऊपर अगर हमें एक दफा भी हम किसी इस तरह के पैथोजन से होते हैं, तो उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारा एक इटसेल्फ आर्मी क्रिएट हो जाती है, और उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी दैट इज स्पेसिफिक होती है, ये बिल्कुल जिस पैथोजन के लिए वो डेवलप हुई होती है उसी के अगेंस्ट काम करती है. लेकिन जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है. तो व्हाट वी हैव टू डू, बेटर है कि अगर हम दोनों को कंपैरिजन में आपके लिए देखते तो शायद और आसान होता कि किस तरह से अडॉप्टिव इम्यूनिटी में और बेसिकली इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंस होता है. एक स्पेसिफिक होती है, एक नॉन स्पेसिफिक होती है.
इसकी डाइवर्सिटी होती है कि लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन, डिफरेंट किस्म के पैथोजन को जो है ये एक डिफरेंट किस्म की होती है, स्पेसिफिक तो होती है लेकिन होते हमारे पास बहुत डाइवर्स किस्म की होते हैं। ये वाले अडॉप्टर हमारी जो मशीनरी है या आर्मी जो है बहुत डाइवर्स होती है। अगर डिफरेंट किस्म के भी कोई पैथोजन आ जाते हैं तो उनके लिए भी हमारी बॉडी में एक सिस्टम मौजूद होता है जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है। और इसके पास इसकी जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसकी मेमोरी नहीं होती। They don't remember the pathogens again and again. But the important thing in case of the adaptive immunity is that it has a memory. What does mean by that? कि अगर कोई हमारा एक दफा पैथोजन आया और अगर सेम पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में आता है तो व्हाट इट डज कि ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंड देन कीप इन माइंड कि वो पैथोजन जो है ज़ाहिर है हमारी बॉडी में वो एंटर हो रहा है और एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट जो है हमें अपनी प्रोटेक्शन को लेना चाहिए। तो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली। सो नेक्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और ये जो है ज़ाहिर है क्या हमारा अपने बॉडी का है या बाहर से पार्टिकल है तो ये उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है। So if we talk about the specificity and slightly detailed ability to distinguish between the antigens, adaptive immunity acts against specific foreign antigens, and innate immunity recognize molecular patterns that are shared with the many pathogens like peptidoglycan or the gram-positive bacteria. ये ज्यादातर की जो है वो एक जैसी होती है लेकिन जो हमारी अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती है वो स्पेसिफिक होती है अगेंस्ट सम पर्टिकुलर पैथोजेंस। जैसे टी लिम्फोसाइट विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ होते हैं और this is the gram positive bacteria है। If we look for your diversity, what it does mean by this term, ability to respond to wide variety of the antigens. Adaptive immunity respond against multiple strain of bacteria, viruses, fungi and a specific manner due to its diversity. Each individual is capable of producing the billion of antibodies. यार एक के अंदर जो है इनके अंदर यही आप इनके डाइवर्स क्या मतलब है कि ये बहुत तरह की मिलियन ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं और जिस तरह का भी मैक्सिमम पैथोजन जो होती है उनके अगेंस्ट हमारा जो है अडॉप्ट इम्यून एक बना लेते हैं और ज़ाहिर है उससे हमारी बॉडी जो लेट्स सपोज कि अगर हमारे अंदर कोई इन्फ्लुएंजा का या कोई और वायरस हमारी बॉडी में आता है तो ये उसके अगेंस्ट जो उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देन इवन सम डिफरेंट कोई भी अगर हमारा पैथोजन आ जाता है तो देन मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो है दे कैन कोप इट एक्चुअली इफ दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमंस। बट इन सर्टन केसेस ऑफ कोर्स लाइक वी आर फेसिंग दीस डेज इन कुछ ऐसे होते हैं ज़ाहिर है जिनको हमारी बॉडी में जो है even we still can't develop the adaptive immunity. So that case we use some other terms what we call it like a passive immunity and what we call it the hard immunity. तो उससे हम इनको जो है कोप करते हैं। So next what we have the memory ability to recognize and quickly respond to the previously encountered antigen along with the fighting and infection is also produce memory cells. ये हमारी पुरानी कहानी है जो एक्चुअली तो ये पहले की कहानी है जो पहले होनी चाहिए लेकिन we just assumed that and we discussed MSC. बट MSC we discuss this in detail. इफेक्टर टी सेल्स क्या होते हैं जो बेसिकली फाइटर होते हैं और मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं कि जो बेसिकली अपनी उन चीजों का जो पैथोजन होता है उसकी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं और अगर वो पैथोजन दोबारा बॉडी में आता है तो ये मैसेज डिलीवर कर देते हैं और खुद से डिफरेंशिएट होकर इफेक्टर सेल बना देते हैं ताकि हम उस वापस आने वाले पैथोजन के साथ फाइट कर सके। तो along fighting with the infection it also produces the memory cells and if the antigen attacks the immune system again the immune response becomes faster and more stronger and that is what we have. So these are the remember the pathogen के pathogen को remember करते हैं। अब it is what does mean by the term discrimination between the self and non-self। तो अगर हम discrimination की बात करें तो ability of the immune system to tolerate self while recognize the destroy non-self so in responsive to self is known as a tolerance। इसके अंदर जो एक टॉलरेंस की कैपेसिटी होती है कि ये हर चीज के अगेंस्ट क्विक रिस्पांस नहीं देते, ये दे कैन डिस्टिंग्विश, दे कैन डिस्क्रिमिनेट कि ये हमारा रिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है एंड देन दे अकॉर्डिंगली रिस्पांस करते हैं। तो एबिलिटी टू टॉलरेट सेल्फ जिसको हम सेल्फ को ये टॉलरेट कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जबकि जो नॉन सेल्फ होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अनरिस्पांसिव टू सेल्फ इज नोन एज अ टॉलरेंस। अब इसके अंदर अब एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो क्या है टॉलरेंस की टर्म्स के व्हाट डज मीन बाय द टर्म टॉलरेंस जो है इसमें इम्यून सेल्स हैं। अब ये जो अगर उसका सेल्फ के मॉलिक्यूल होंगे या अगर सेल्फ एंटीजन होगा तो उसको जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और उसको टॉलरेट कर लेता है और अगर उसके लिए नॉन सेल्फ हो जैसे कि अगर कोई वायरस है या कोई टॉक्सिन है या कोई बैक्टीरिया है तो क्या करेगा कि इम्यून रिस्पांस शो करेगा और उसको इमीडिएटली जो इनगल्फ कर देगा। तो टाइप ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी इज कुड बी द ह्यूमरल इम्यूनिटी व्हाट वी कॉल एंड देन इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसकी दो तरह के टाइप्स होती हैं। इसी तरह से ऑन द बेस ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी
कि जब हम आगे जाके किस चीज की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट जो है व्हाट वी कॉल्ड के टू टाइप्स ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी होती हैं। एक हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी है और सेकंड व्हाट वी कॉल्ड इट दैट इज अ सेल मीडिएटेड। और इस तरह से हम आगे स्टोरी को इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस की तरफ भी लेके जाएंगे, तो वहां भी हम ऐसी डिजीजेस की बात करेंगे। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें हमारा ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो वो काम करना छोड़ देता है, और कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें हमारा सेल मीडिएटेड सिस्टम जो वो काम करना छोड़ देता है, इसलिए उनको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। और जिनके अंदर हमारा ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पांस छोड़ देता है, तो उनको हम ह्यूमरल इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। और कुछ के अंदर क्या होता है कि दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि ह्यूमरल भी काम नहीं कर रहा होता, सेल मीडिएटेड भी काम नहीं कर रहा होता, तो उनको हम ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड डेफिशिएंट डिजीज के नाम से जानते हैं। इट मीन कि वी हैव दिस बेसिक कांसेप्ट कि ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो इसकी बेस के ऊपर हम आगे जो लर्न करने जा रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से इनकी डेफिशिएंट की बात जो है वो डिजीजेस की तरफ ये लीड करती है। तो इज आल्सो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पांस है दैट इज आल्सो, दूसरे को हम सेल मीडिएटेड कह रहे हैं, बट ह्यूमरल इज नोन एज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस। इसी का जो सेकंड नेम है, इट मीन ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस इज आल्सो नोन एज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस, derived from the word humor. Humor mean fluid, क्योंकि जो एंटीबॉडी होती है वो फ्लूइड में जो है वो फ्लोट कर रही होती है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस या एंटीबॉडी। उस ह्यूमरल के अंदर या उस फ्लूइड के अंदर बेसिकली चीज रिस्पांसिबल कौन सी होती है, दैट इज अ एंटीबॉडी। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस। आई होप कि आपको इन दोनों बातों में कि जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस क्या होता है और एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस क्या होता है। If we talk about the humoral immune response, involve molecules such as the antibodies that are found in the body fluid, and antibodies are produced from the B lymphocyte and deal with the extracellular pathogens. जो भी पैथोजेंस आते हैं तो उनके साथ जो ये डील करती हैं कि उनके हर एक के लिए हम जानते हैं कि हर जो लिम्फोसाइट होते हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ एंटीबॉडीज जो मौजूद होती हैं, तो जिसके अंदर एंटीजन फिट होता है देन दे स्टार्ट वर्किंग इवन समटाइम्स इवन इन द प्लाज्मा, और वहां से ये किस में भेजते हैं, सारे प्लाज्मा सेल्स को भेजते हैं, और वहां से ये भी हम स्टेप पढ़ चुके हैं कि हाउ द बी लिम्फोसाइट जो सीक्रेट द एंटीबॉडीज। बट वन अनदर टॉपिक वी इवन स्टिल हैव लेफ्ट टू स्टडी कि एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, के बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन, क्योंकि अभी तो हम जितनी पढ़े हम टी लिम्फोसाइट की पढ़ रहे थे, बी लिम्फोसाइट इज स्टिल रिमेनिंग। तो हम आने वाले किसी लेक्चर में इंशाल्लाह एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट को भी डिस्कस करेंगे कि बी लिम्फोसाइट जो वो किस तरह से एक्टिवेट होते हैं। और लेकिन ऑफ कोर्स बट मोस्टली आफ्टर दैट बट वी आर गोइंग टू टॉक अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज के हवाले से जो हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ एंटीबॉडीज कांट गेन एक्सेस टू माइक्रोब व्हिच आर लाइव डिवाइड इनसाइड द सेल्स। So what about the intracellular pathogens or cells that have been infected? उनके साथ क्या होता है? So for that purpose we have cell mediated immune response that is also called cellular response. So defense against intracellular pathogens is mediated by the cell mediated immune response. Important player of this immunity are T lymphocyte, और इनको T lymphocyte में पहले भी क्यों कहते हैं, क्योंकि they are produced inside the thymus, और थाइमस में प्रोड्यूस होने से इन सेल्स का नेम क्या होता है, एंड दीज आर द हीरो ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम में सबसे मेजर काम जो कर रहे होते हैं, यानी कि जो पीछे जो आपका जर्नल है बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम के, वो टी लिम्फोसाइट होते हैं, कि जो मैसेज देते हैं या उन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि नाउ यू गेट फायर, अब आपके पास चांस है, एंड नाउ वी हैव द एनिमी एंड दे जस्ट ट्रिगरिंग द जो है उस मशीनरी को ऑर्डर करते हैं दूसरे जो हमारी आर्मी है कि नाउ पुट द फायर फॉर दैट पैथोजन, तो उनके ऊपर जो है ये फायरिंग के काम करने में अंतिशा व्हाट वी कॉल्ड इट एज कि यार जो मेजर उसके अंदर इनका रोल होता है। तो हेल्पर टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं एंड मेमोरी टी सेल्स हैं। ये तीन तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो कमिंग लेक्चर के अंदर हम कल जो है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज के हवाले से डिस्कस करें। सो बट दिस वाज ऑल फॉर टुडे।